اور اپنے دشمن سے بدترین انتقام لینے پر تل گئی تھی۔ اس کی زبان سے پروگرام کے التوا کا ذکر سنتے ہی میں نے پھرتی سے کلابازی کھانے کا فیصلہ کر کے کہا، جو کچھ طے ہو چکا ہے وہ ضرور ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ ہم کسی التوا کے بغیر وائٹ ہاک کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کیسے؟ اسے تند لہجہ میں سوال کیا۔ مجھے سمجھاؤ کہ جاسوسی کے آلات اس بورڈ کو کیسے تباہ کر دیں گے؟ تمہاری بد دعائیں اور ماسٹر کی چالاکی وائٹ ہاک کو لے ڈوبے گی۔ چاؤفان نے پوری گفتگو کے رخ کا اندازہ کرتے ہوئے لقمہ دیا۔ میں تمہارے ماسٹر کی چمکتی ہوئی آنکھوں میں بہت کچھ دیکھ چکی ہوں، لی نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ یہ بہت چالاک، مکار اور صفاک آدمی ہے۔ ضرورت پڑنے پر یہ تمہیں بھی موت کے منہ میں جھونک سکتا ہے۔ یہ بیکار باتیں ہیں، میں نے رسانیے سے کہا۔ آہنی بکسوں میں جاسوسی کے آلات کے ساتھ تباہ کن بارود بھی موجود ہے۔ اس پر پانی اثر نہیں کرے گا۔ ہم جب بھی چاہیں اس بارود کو اڑا سکیں گے۔ علی، تم خطرناک آدمی ہو، میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ اس نے پوری بے خوفی کے ساتھ اپنے دل کی بات بیان کر دی۔ مجھے جاسوسی کے آلات وائٹ ہاک کے پیندے میں لگانے کے لیے لایا گیا تھا۔ اب تم نے بیٹھے بیٹھے اس میں بارود بھی پہنچا دیا۔ میرے ساتھ کھیل نہ کھیلو، سچ سے بتاؤ کہ تم کیا کرنا چاہ رہے ہو۔ میں بے خبری میں قربانی کا بکرا نہیں بنوں گی۔ مادام، اچانک چاؤفان بول پڑا، تم جنس کی غلطی کر گئی ہو۔ تمہیں قربانی کی بکری کی بات کرنی چاہیے تھی۔ چوکیاں دکھانے کی کوشش مت کرو، لی نے سخت لہجے میں کہا۔ اس وقت میں اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ کرنے جا رہی ہوں، جس کا نتیجہ میری موت یا دشمن سے انتقام کی صورت میں برآمد ہوگا۔ تم غیر ضروری طور پر اعصابی دباؤ کا شکار ہو رہی ہو۔ میں نرمی سے لی کو ہلکی سی تعریف کی۔ تمہارے ساتھ کوئی کھیل ہو رہا ہے، نہ تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اسے اسی طرح ہونے تو ہمارے ساتھ تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ جاسوسی کے ان آلات کے ساتھ ہم نے کچھ ریموٹ کنٹرولڈ بارودی ہتھیار بھی رکھے ہیں۔ مقصد صرف یہ تھا کہ اگر کسی وقت راجن کے آدمی ان آلات کا سراغ لگا لیں اور متجسس ہو کر ان سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کریں تو آلات سے آنے والے صوتی اشاروں سے ہمیں ان کے مداخلت کا علم ہو جاتا۔ ایسی صورت میں ہم ریموٹ کنٹرول کے ذریعے وہ آلات تباہ کر سکتے تھے۔ اوہ، اب میں سمجھی۔ لی کے دہانے سے تحیر زدہ اور اطمینان آمیز آواز برآمد ہوئی۔ تمہارے لیے رازداری کا برقرار رہنا ضروری ہے۔ اس کے لیے ایسا بندوبست ناگزیر تھا۔ کیا وہ بارود اتنا طاقتور ہوگا کہ آلات کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ وائٹ ہاک کے فولادی پیندے میں بھی سوراخ کر دے؟ لی ذہین عورت تھی، وہ آنکھیں بند کر کے کسی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے بارودی قوت کے بارے میں سوال اٹھا کر مجھے حیران کر دیا۔ وہ مجھے کام کی عورت نظر آ رہی تھی۔ میں نے ابتدا سے ہی کوشش کی تھی کہ اسے اس کے ہر سوال کا اطمینان بخش بلکہ مسکت جواب دوں، تاکہ اسے یہ شبہ نہ ہونے پائے کہ ہم نے اسے دھوکہ دے کر اپنا اداکار بنانے کی کوشش کی ہے۔ اس وقت تک میں نے اپنا یہی موقف برقرار رکھا تھا کہ دراصل وائٹ ہاک تک جاسوسی کے آلات پہنچانے کے لیے اس کی خدمات حاصل کی گئی تھیں۔ ان دونوں بکسوں میں بارود کا ہونا ایک ضمنی واقعہ تھا، جس کا تعلق ہماری احتیاطی تدابیر سے تھا۔ شاید سوراخ ہو جائیں گے، میں نے سوچنے کی اداکاری کرتے اسے جواب دیا۔ ہم کو ہلکی قوت کے بم نہیں مل سکے، جو ملا وہ خرید لیا۔ ہمیں پسپا ہونے یا آج کے کام کو التوا میں ٹالنے کی ضرورت نہیں۔ جو کچھ ہونا ہے وہ آج ہی ہو جائے گا۔ پھر میرا یہ قیاس درست ہے کہ آج سمندر کے سینے پر وائٹ ہاک کی آخری رات ہوگی۔ صبح کا اجالا پھیلنے سے پہلے وہ سمندر کی تہہ میں جا چکی ہوگی۔ میری وضاحت پر اس کی آواز میں طمانینت جھلکنے لگی۔ تمہاری خوشنودی کے لیے میری دلی دعا ہے کہ ایسا ہی ہو، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے۔ آج تم آلات اور بارودی بموں کے بکس وائٹ ہاک کے پیندے میں لگا دو۔ کل کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اسے اڑا دیا جائے گا۔ کس بات کا جائزہ لوگے؟ اس نے مصربانہ آواز میں کہا۔ جو کرنا ہے آج کی رات کر گزرو، تاکہ میں آنے والا دن خوشی کے ساتھ گزار سکوں۔ وقت کی بربادی سے ہم کوئی فیض حاصل نہیں کر سکیں گے۔ وہ اپنی بات پر اڑ جانے کے موڈ میں نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کی مرضی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ تمہارے مزاج پر اجلت سوار ہے۔ راجن کے خلاف ہمارے اور تمہارے جذبات میں یکسانیت ہے۔ اگر تم سب کچھ آج ہی کر لینا چاہتی ہو تو یہ بھی ہو جائے گا۔ منصوبہ بے شک تمہارا ہے، لیکن اس میں کلیدی کردار میرا ہے۔ یہ میری کامیابی ہوگی، وہ خوش ہو کر بولی۔ ہمیں کام سے مطلب ہے۔ تم یہ صحرا اپنے سر باندھنا چاہتی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چاؤفان نے اپنی زبان کھولی۔ یہ میرے اور تمہارے لیے شرم کی بات ہے کہ بھارت سے آیا ہوا ایک پردیسی ہمارے شہر پر راج کر رہا ہے، ہماری عورتوں کی عزتیں تاراج کر رہا ہے، اور ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب اس کا وقت پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تمہارا ماسٹر بھی اپنے خدوخال سے راجن کا ہم وطن معلوم ہوتا ہے۔ اچھا ہے کہ ان کی آپس کی لڑائی میں ہمارا شہر باہر کے گند سے پاک ہو جائے گا۔ لی نے میری قومیت کا سوال چھیڑ کر مجھے مسترب کر دیا۔ وہ ہم سے مل گئی تھی، لیکن میں اس پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔
मैंने इन दोनों की गुफ्तगू को वहीं खत्म करने के इरादे से चाउफान से कहा, साहिल अब तक नजर नहीं आया, क्या तुम हमें मलेशिया ले जा रहे हो? मास्टर, तुमने मुझे गाड़ी की रफ्तार कम करने की हदायत दी थी, उसने हैरत से कहा, मगर मैंने इसकी बात दरमियान ही से उचक ली। मैं मंजिल पर पहुंचने से पहले ली से मुज़ाकरात मुकम्मल करना चाह रहा था। खुलकर हर बात हो गई है, अब रफ्तार बढ़ा लो। चाउफान तेज रफ्तारी का शौकीन था। एक खफीफ से हचकोले के साथ उसकी गाड़ी की रफ्तार तेजी से बढ़ती चली गई। अली खासा शरीफ और मिलनसार आदमी नजर आता है। चंद सानियों के बाद ली की शोख आवाज उभरी, तुमने बिला वजह इसकी खौफनाक तस्वीर खींची थी। मैं समझ रही थी कि यह खासा तुनकू और तुरुश रू आदमी होगा। मादाम ये तुम्हारी पहली मुलाकात है, चाउफान ने बुझी आवाज में कहा। मास्टर को एक बार इसके असल रूप में देखोगी तो बेतकल्लुफी से इसका नाम लेना भी भूल जाओगी। इसके लिए मास्टर का लक़ब अच्छा लगता है, मैं भी इसे यही कहूंगी। ली आज खुद मेरा मफरूजा नाम देने से दस्तबरदार हो गई। दिलों की बातें जुबान पर आ जाने के बाद हमारे दरमियान तनाव खत्म हो गया। फिजा नहायत दोस्ताना हो गई और बकिया सफर हंसते बोलते हुए तय हो गया। मुझे इस बात की खुशी थी कि चाउफान ने ली की मौजूदगी में अपनी जुबान पर काबू रखा हुआ था। सारी बातें सुन लेने के बाद उसने अंदाजा लगा लिया था कि मफाहमत हो जाने के बावजूद मैं ली पर अंधा एतमाद करने की गलती नहीं की थी। सुस्त रवि में खासा वक्त बर्बाद करने के बावजूद हम 2 बजने से जरा पहले इस साहिली खाड़ी तक पहुंच गए, जहां चाउफान के 5 आदमी अपनी जंगी तैयारियों के साथ खमर आमद के मुंतजिर थे। चंद पथरीले टीलों की ओट में छुपी हुई वो बहरी खाड़ी देखकर मैं दिल ही दिल में चाउफान के इंतखाब की दाद दिए बगैर नहीं रह सका। तारों भरे आसमान की छांव में वो खाड़ी हमारे लिए एक बेहतरीन पनाहगाह थी। वहां तक पहुंचने के लिए हमने कई किलोमीटर लंबे कच्चे नाहमवार और तारीख रास्ते पर सफर किया था। साहिली सड़क से दूर वाक़े होने की वजह से वहां किसी के मुदाखलत का इम्कान नहीं था। साहिल के साथ समंदर की लहरों के टकराने का धीमा शोर फिजा में गूंज रहा था। खाड़ी में आने वाली लहरें पत्थरों से टकराकर दूर तक हल्की सी फवार बरसा रही थी। लहरों के सीने पर 2 छोटी मोटर बोट सचकोले खा रही थी। इन्हें मोटी रस्सियों के साथ एक उभरी हुई चट्टान से बांध दिया गया था। मैं 3 आदमियों के साथ पहली बोट में निकलूंगा। चाउफान ने अपनी मादरी जुबान में अपने आदमियों से मुख्तसर सी गुफ्तगू करने के बाद मुझे बताया, यह हिस्सा समंदर में काफी आगे निकला हुआ है, इसलिए हमें बंदरगाह या शहर की रोशनियां नजर नहीं आ रही, मगर वाइट आग यहाँ से ज्यादा दूर लंगर अंदाज नहीं है। हमारी बोट गहरे समंदर में एक लंबा चक्कर काट कर वाइट आग की दूसरी चानब पहुंचेगी। बोट्स में हथियारों का वाफर जखीरा मौजूद है। हमें वाइट आग के करीब मंडलाता हुआ देखकर उसके मुहाफिज पूरी तरह हमारी तरफ मुतवज्जा हो जाएंगे। इन्होंने हमें भगाने के लिए हवाई फायरिंग में पहल न की तो हम खुद उन्हें छेड़ेंगे ताकि वो अपनी सारी तवज्जो हमारी बोट पर मरकूज करते। फायरिंग शुरू होने के बाद वो इसी तरफ जम जाएंगे। तुम फायरिंग शुरू होने के बाद यहाँ से सीधे निकलोगे और वाइट आग की रोशनियां तुम्हारे सामने होगी। तुम महफूज फासले पर बोट रोककर मादाम को इसके गोताखोरी के लिबास में समंदर में उतार दोगे। इस दौरान में ट्रांसमीटर पर हमारा आपस में राब्ता रहेगा। मादाम की वापसी के साथ हम भी फरार होकर इसी खाड़ी में लौट आएंगे। तुम्हारे दोनों आदमी सिर्फ मल्लाह हैं या लड़ना भिड़ना भी जानते हैं? ली ने गहरी संजीदगी से पूछा। खाड़ी का माहौल देखकर वो फिक्रमंद हो गई थी। ये 5 बैंकॉक के बेहतरीन निशानची हैं। तब हथियारों के इस्तेमाल में माहिर हैं। राइफल से उड़ती हुई मक्खी को निशाना बना सकते हैं, चाउफान ने फख्र से बताया। अपने तीनों साथियों को एक बोट में भेजकर चाउफान हमारे साथ हो लिया। फाइबर की बनी हुई मजबूत बोट को किनारे पर खींचने के बावजूद हमें उथले पानी में से गुजरकर इस पर सवार होना पड़ा। बोट वाकई छोटी थी। इसका कैबिन बराए नाम था, जिसे एक पार्टीशन के जरिए 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। अगला हिस्सा बोट के पायलट के लिए था। वो अपने मुआवन के साथ इधर चला गया। चाउफान हम दोनों के साथ अकबी हिस्से में आ गया, जहाँ धीमी रोशनी में गोताखोरी का एक मुकम्मल कास्ट्यूम ऑक्सीजन सिलेंडर समेत नजर आ रहा था। कैबिन के आरामदेह नशिस्तों के नीचे 2 राइफलें और इनके मैगजीनों की वाफिर मिकदार मौजूद थी। चाउफान ने कैबिन का एक दीवार गिर खाना खोला और वहां से एक वायरलेस ऑपरेटस निकालकर मेरे हवाले करता हुआ बोला, इस खाने में रिवाल्वर और चंद हल्के दस्ती बम भी मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है कि तुमको इनमें से किसी चीज की जरूरत पेश नहीं आएगी। हमारे साथ चांदमारी में उलझाने के बाद वाइट हाउस के मुहाफिज सोच भी नहीं सकेंगे कि दूसरी तरफ से इनकी लांच के खिलाफ कोई खामोश कार्रवाई हो रही है। तुमने खासा महफूज और शैतानी मंसूबा बनाया है। ली ने तूसीफी लहजा में कहा, राजन के आदमी बेखबरी में मारे जाएंगे। ये वो दोनों वाटर प्रूफ बक्स हैं जिनमें बारूद और जासूसी के आलात मौजूद हैं। चाउफान ने एक नशिस्त के नीचे से दोनों बक्स निकालकर ऊपर रख दिए। ली ने एक बक्स को हाथ में उठाकर तोला और एक गहरा सांस लेकर बोली, मैं इनके वजन से डर रही थी। ये तो बहुत हल्के हैं, इन्हें पानी में ले जाना ज्यादा दुश्वार नहीं होगा। चाउफान ने ली को इन मकना चीजों के इस्तेमाल का तरीका समझाया जो वाटर प्रूफ बमों से बंधे हुए थे।
ली को अपने दाम में लाने के लिए चाउफान ने जासूसी के आलात की कहानी गढ़ी थी, वरना इन दोनों बक्सों में मोहलक बारूद के सिवा कुछ नहीं था। बाद में मुझे चाउफान से पता चला कि उसने बक्स का लफ्ज दानिस्ता इस्तेमाल किया था। दर हकीकत वही बक्स अमेरिकी स्टॉक के वाटर प्रूफ बम थे जिन्हें रिमोट कंट्रोल के जरिए चलाया जा सकता था। हमारी कामयाबी की दुआ के साथ चाउफान हमारी बोट से उतरकर पानी में छप छप करता हुआ अपनी बोट पर चला गया, जो हमसे जरा दूर उथले पानी में टोल रही थी। इसके सवार होते ही 2 आदमी नीचे उतरे। उन्होंने चट्टान से रस्से खोलकर दोनों बोट्स पर उछाले, फिर हमारी कश्ती को किनारे से धकेलकर पानी में उतार दिया। इस दौरान में चाउफान का तीसरा साथी अपनी बोट का इंजन स्टार्ट कर चुका था। हमारी बोट को समंदर के पानी में उतारने के बाद बकिया दोनों आदमी भी दौड़कर अपनी बोट पर चढ़ गए। सुरमई रंग की इस बोट की तमाम धीमी रोशनियां गुल हो गई। बोट के इंजन की घुर्राहट तेज हुई और लम्हा भर बाद वो घूमकर सुबह रफ्तारी के साथ खुले समंदर की तरफ रवाना हो गई। गहरी तारीख रात में मैं चाउफान की बोट की रवानगी का मंजर देखता रहा। चंद मिनट बाद वो बोट ऊंची समुद्री लहरों की ओट में ओझल हो गई। चाउफान ने अपनी मंसूबाबंदी में सारी जज़ियात का पूरा ख्याल रखा था। अपनी दोनों बोट्स की शिनाख्ती अलामात मिटाने के लिए उसने ऐसे रंग का इंतखाब किया था जो समंदर के सीने पर फैली हुई तारीकी में पूरी तरह मुतकम हो गया था। मास्टर, आओ मेरा लिबास बदलवा दो, ली ने मेरा बाजू दबाकर धीरे से कहा। वो मेरे लिए मुश्किल तरीन मरहला था। इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं 2 कदम बढ़कर बोट के कैबिन में पहुंच गया। इसी वक्त हमारी बोट का इंजन भी चला दिया गया। मुतलातुम लहरों में भटक कर बोट पत्थरों से टकरा सकती थी। इसे किसी नागहानी हादसे से बचाने के लिए इंजन के कंट्रोल में रखना जरूरी था। कहो अब क्या इरादा है? ली ने चंद सानियों तक मेरी आंखों में देखते रहने के बाद अपनी बाईं आंख दबाकर पूछा। मैं कपड़े उतार दूं? इसकी क्या जरूरत है? मैंने उसे नजरें चुराकर उसका डाइविंग कॉस्ट्यूम अपने हाथ में उठा लिया और अपनी बात जारी रखी। तुम इन कपड़ों पर भी कॉस्ट्यूम पहन सकती हो। इरादा यही था, वह हल्की सी शौक हंसी के साथ बोली। इसलिए मैं टी-शर्ट और चुस्त जीन्स पहनकर आई थी। अब इरादा बदल रहा है। हमें चाउफान के सिग्नल का इंतजार करना है, तो क्यों ना इस वक्त को बेहतर अंदाज में गुजारें। औरत के मामले में तुम कुछ मगरूर से नजर आते हो। मुझे देखो और महसूस करोगे तो तुम्हारा गरूर पिघल जाएगा। ली, तुम बहक रही हो, मैंने अपनी बाईं कनपट्टी मसलते हुए कहा। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे ली की बातों से मेरा दुराने खून तेज हो गया हो। मास्टर, तुम मुझे नजरअंदाज कर रही हो। यकायक उसका लहजा शिकायती होगा। नजरअंदाज नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे इरादों से खौफजदा हूं। इस छोटी सी बोट पर सिर्फ हम दोनों नहीं हैं। चंद फुट के फासले पर चाउफान के 2 आदमी भी मौजूद हैं। कोई तमाशा देखकर वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? हम यहाँ पिकनिक मनाने के लिए नहीं, कुछ तो खून करने के इरादे से आए हैं। मुझे इन दोनों की जरा भी परवाह नहीं है। इनका खून ठंडा और दिमाग माऊफ होते हैं। इन्होंने चाउफान से कुछ कहा तो वो इस इल्जाम में इनकी चमड़ी गिरा देखा कि ये अपना काम छोड़कर ताक झांक क्यों कर रहे थे। उसने बेबाकी से सरगोशी की। मैंने ड्राइविंग कॉस्ट्यूम उसकी तरफ बढ़ाकर उसे नरमी से पीछे धकेल दिया। हमारे पास वक्त नहीं है, किसी भी लम्हे सिग्नल आ जाएगा। इस वक्त तुम तैयार ना हुई तो आज का मिशन बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारी बहन का लहू इंतकाम इंतकाम पुकार रहा है और तुम जज्बात के रो में बही जा रही हो। ये क्यों भूल रही हो कि हम कल भी मिलेंगे? उसने मेरी बात मुकम्मल होने से पहले अपने जूते उतारे और गोताखोरी का लिबास पहनना शुरू कर दिया। शायद मेरा कहा हुआ कोई लफ्ज या फिक्रा सही निशाने पर लग गया था। इसके लिए वो लिबास पहनना आसान नहीं था। मुझे उसकी मदद करना पड़ी। चंद मिनट की कोशिश के बाद वो इस लिबास में बखूबी समा गई। मैंने उसकी पुष्ट पर ऑक्सीजन का सिलेंडर कसा, उसकी नलकियां सर और चेहरे के हुड से जोड़ी, जिप, बेल्ट और डोरियां कसी। ली ने शफाफ शीट के पीछे पलके झपका के चंद गहरे सांस लिए और फिर हेड गियर पीछे उलट दिया। सब ठीक है, उसने मुस्कुरा के कहा। अब दोनों बक्स मेरे बेल्ट के साथ बांध दो। ये याद रखना कि मेरी कमर से बंधी हुई डोरी का दूसरा सिरा तुम्हारे हाथ से निकल गया तो मैं इस घूर अंधेरे में बोट तक वापस नहीं आ सकूंगी। भटक गई तो व्हाइट हाक वालों की गोलियां मुझे चाट जाएंगी। मेरी लाइफ लाइन तुम्हारे हाथ में होगी। तुम फिक्र ना करो, डोरी मजबूत और बहुत लंबी है। कम पड़ी तो मैं इससे दूसरा लच्छा जोड़ दूंगा। तुम भटक गई तो मुझे कल शाम की चाय कौन पिलाएगा? आखिरी फिक्रा मैंने उसका दिल रखने के लिए कहा था। रात के अंधेरे में समंदर में उतरने के लिए बड़े हौसले की जरूरत थी। इस वक्त ली का दिल बढ़ाना और उसके दिल में उम्मीद का जिंदा रखना जरूरी था। मेरे अल्फाज पर उसकी निगाहें चमक उठी। ली के अज़ाइन की राह में गोताखोरी का लिबास सहायल हो चुका था। वो इस दोहरे लिबास से आसानी से बाहर नहीं आ सकती थी। मैंने मुतमईन होकर दोनों रिमोट कंट्रोल बम यके बाद दीगरे उसकी कमर के गिर्द पड़ी हुई बेल्ट से बांध दिए। छोटे से कैबिन के दाएं बाएं इतनी मुख्तसर से राहदारी थी कि एक वक्त में एक शख्स भी वहां से गुजर सकता था। हम दोनों वहां से निकलकर बोट के पिछले हिस्से में चले गए। यहाँ समंदर से लुत्फ अंदोज होने के लिए
कुशादा जगह मौजूद थी। बोट का इंजन चल रहा था। खाड़ी के इर्द गिर्द फैली हुई चट्टानों पर नजर डालने से अंदाजा हो रहा था कि हमारी बोट पानी में एक जगह ठहरी हुई थी। इधर से आंखें बंद कर ली जाती तो हजकोलों से यूं महसूस हो रहा था जैसे सफर का आगाज हो चुका हो। मास्टर, इस पर चरागाह हो रहा है। हम अपनी तमाम रोशनियां गुल करके अंधेरे में अपना सफर तकरीबन तय कर चुके हैं। हदफ हमारे और तुम्हारे दरमियान आ चुका है। वो अपने इंफ्रारेड दूरबीनों से किसी भी लम्हे हमको देख लेंगे और फिजा बारूदी नगमों से गुनगुना उठेगी। कुछ देर बाद चाउफान ने अचानक ट्रांसमीटर पर बोलना शुरू कर दिया। तुम चहक रहे हो, यह अच्छी अलामत है। इसके खामोश हो जाने पर मैंने खुश्क लहजे में कहा, हम तैयार हैं। अगर वहां तरबो निशात की माफिलें जमी हुई हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें होशियार रहना होगा। मेरा ख्याल है कि यह और ही अच्छा है। सब अपनी धुन में मगन है। हमारी कामयाबी के इम्कानात रोशन है। तुम्हारी अकल पर समंदरी झाग जमा हो रहे हैं। गोलियां चलेंगी तो वहां भगदड़ मचेगी। बदहवास रंगीले हर तरफ निकल खड़े होंगे। इनमें से कोई भी हमें देख सकता है। यह तशवीशनाक सूरत हाल है। अचानक फिजा एक फायर की आवाज से लर्ज उठी। लो, पहली गोली आ गई। ऑपरेटर्स पर चाउफान की पुरजोश आवाज उभरी। अब जो होगा देख लिया जाएगा, तुम मोहतात रहना। फायर सुनते ही ली ने चीख कर कुछ कहा। हमारी बोट फौरी तौर पर हरकत में आ गई। यकायक इसकी रोशनियां गुल कर दी गई। पायलट ने धीमी रफ्तार से बोट को घुमाकर इसका रुख सीधा किया। फिर इसकी रफ्तार तेज होती चली गई। इस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि वह स्पीड बोट छोटी जरूर थी, लेकिन इसका इंजन बहुत ताकतवर था। समंदरी रास्ते से स्मगलिंग और दूसरे हेर फेर करने के लिए बोट्स का बर्क रफ्तार होना जरूरी था। चाउफान मुझे बता चुका था कि वो दोनों बोट्स उसकी मलकियत थी। अलामात बता रही थी कि काले धंधों के मुकाबले में चाउफान भी राजन से कम नहीं था। चंद मिनट बाद हमारी बोट साहिली चट्टानों की दीवार की ओर से निकली तो हमें समंदर में लंगर अंदाज वाइट हाक नजर आ गई। इसके अर्शे से लेकर निचली मंजिलों तक तमाम राहदारियां रोशनी में नहाई हुई थीं। इनसे नीचे रोशन पोर्ट होल नजर आ रहे थे। वाइट हाक अपने सफेद रंग की वजह से तारीक समंदर में बहुत मुमताज नजर आ रही थी। वाइट हाक से बहुत दूर पस मंजर में हार्बर की नंदासी रोशनियां दूर तक फैली हुई नजर आ रही थी। वो हम सब से इतनी दूर थी कि वहां चलने वाली गोलियों की आवाज का वहां तक पहुंचना मुमकिनात में से था। फिजा में तवातर के साथ फायरिंग का शोर गूंज रहा था। चाउफान ने मंसूबे के मुताबिक वाइट हाक वालों का मुकाबला करना शुरू कर दिया था। लहरों के मुहेब और धीमे शोर में गोलियों की आवाजें मेरा दिल उड़ा रही हैं। ली ने मेरे शाने पर झुककर सहमी हुई आवाज में कहा। फायरिंग के तबादले से इसका हौसला कमजोर पड़ गया था। फिक्र न करो, चाउफान ने इन्हें अपनी तरफ उलझा लिया है। फिलहाल हमारी तरफ कोई खतरा नहीं है। चंद मिनट बाद तुम पानी में उतरकर और ज्यादा महफूज हो जाओगी। वाइट हाक खुले समंदर में किसी देव पैकर सफेद इफरीत की तरह साकित खड़ी हुई थी। हमारे देखते ही देखते इस पर भगदड़ मच गई। मुतअद्दिद इंसानी हेवले इस लाश की रोशन राहदारियों में अफरा तफरी के आलम में भाग रहे थे। अचानक हमारी बोट की रफ्तार कम होने लगी। इसके साथ इसका रुख भी बदल गया। वो वाइट हाक की तरफ बढ़ने की बजाय इसके मुतवाजी हो गई थी। पायलट कैबिन से किसी ने ऊंची आवाज में कुछ कहा और ली अचानक सीधी हो गई। पैगाम मेरे लिए था। उसने अपने सरापा पर नजर डालते हुए मुझे बताया, आगे बढ़ने की सूरत में हम इनकी फायरिंग रेंज में आ जाएंगे। ना खुदा मुझे पानी में उतरने के लिए कह रहा है, मैं जा रही हूँ। मैंने ली की तरफ देखा। आसमान पर टिमटिमाते हुए तारों की रोशनी में मुझे उसकी आंखों में अजीब सी हैवानी चमक नजर आई। उसने अपना हेड गियर शानों पर गिराया। मैंने डोरी की चरखी पर हाथ रखा। ली ने मेरी तरफ हाथ लहराया और एक पुरजोर छपाके के साथ समंदर में कूद गई।